شبیر نے سرگودا میں ایک ایسے دولہے کو دیکھا ہے جو اپنی دلہن لینے کے لیے تھانے پہنچ گیا تھا۔ 75 سالہ مطلوب اپنے گھر کے باہر دھوپ میں چارپائی ڈالے حقے کے کش لگا رہا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، جس کے بعد سے تنہائی اس کا مقدر بن گئی تھی۔ مطلوب کے پاس پیسے روپے کی کمی نہیں تھی، لیکن کوئی اس کا دکھ درد بٹانے والا نہیں تھا۔ دھوپ میں تیزی آئی تو وہ حقہ اٹھا کر گھر کے اندر چلا گیا۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو مزید اداس ہو گیا۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے گھر کے سامان کو دیکھتا رہا جو اس کی بیوی نے جمع کر کے گھر میں سجایا تھا۔ اسی دوران مطلوب کے دروازے پر اس کے ایک دوست نے دستک دی۔ مطلوب نے دروازہ کھولا اور دوست کو گھر کے اندر لے آیا۔ اچھا ہوا تو آ گیا یار، تنہا رہ گیا ہوں اور اب یہ تنہائی گھاٹے سے نہیں کٹتی۔ ویسے بھی میری زندگی کے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ یا اللہ، پر کیا کہہ رہا ہے یار مطلوب؟ کوئی اچھا خاصا تو ہے، اور جینا مرنا تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا نا کہ آدمی زندگی سے مایوس ہو جائے۔ دیکھ یار بلال، یہ جو زندگی کے دن ہے نا، یہ کسی نہ کسی طرح کٹ ہی جائیں گے۔ وہ تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن تو گھبراتا کیوں ہے؟ تو کہے تو تیری دوسری شادی کرا دوں۔ ہے میری دوسری شادی؟ کیا کہہ رہا، پاگل تو نہیں ہو گیا تو؟ اور شادی ہو بھی گئی تو اس شادی کا فائدہ؟ اور تو فائدے نقصان کو چھوڑ، بس تو راضی ہو جا۔ ایسی لڑکی سے تیری شادی کراؤں گا، ساری زندگی دعائیں دے گا۔ لڑکی سے؟ وہ پاگل ہو گیا کیا یار؟ میری عمر دیکھ۔ وہ یار یہ سب تو مجھ پر چھوڑ، وہاں کچھ پیسے دینے پڑیں گے۔ پیسے تو ہے نا تیرے پاس؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اور اللہ کہہ دیا بہت کچھ ہے، اور بڑا مال جمع کیا ہوا میں نے، تو فکر نہ کر۔ اچھا چلو پھر میں چلتا ہوں، ہے تو گھر پر آ جا کسی دن، بیٹھ کے بات چیت کریں گے اس معاملے پر، ٹھیک ہے نا؟ لے پھر چلتے ہیں پھر، ہیں؟ صحیح ہے۔ مطلوب دوسرے دن اپنے دوست بلال کے گھر گیا تو دوست نے اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ بلال نے ملازمہ کو آواز دے کر بلایا اور اسے مطلوب کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لانے کی ہدایت کی۔ ملازمہ خاموشی سے سر جھکا کر چلی گئی اور تھوڑی دیر میں ٹرے میں چائے اور بسکٹ سجا کر لے آئی۔ 18 سالہ ملازمہ ہما چائے کی ٹرے لے کر آئی تو مطلوب نے اس پر ایک اچٹی سی نظر ڈالی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ملازمہ چلی گئی تو مطلوب نے تجسس بھری نظروں سے اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ مطلوب کی بیوی مر گئی تو وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے دوست بلال کے گھر گزارنے لگا، جہاں اس نے پہلی بار 18 سالہ ہما کو دیکھا تھا، جو بلال کے گھر کام کرنے آتی تھی۔ کہاں تو بیوی کے مرنے کے بعد مطلوب اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا تھا، اور اب جب سے اس نے اپنے دوست کی 18 سالہ ملازمہ کو دیکھا تھا، مطلوب میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی اور وہ ہر وقت اس کے خیالوں میں کھویا سا رہنے لگا تھا۔ اب وہ اپنے حلیے کا بھی خیال رکھتا تھا۔ وہ خیالوں میں ہما کو اپنے ساتھ ہنستے مسکراتے اور سیر کرتے دیکھتا، لیکن جب خیالوں سے نکلتا تو اس کا دل ڈوب جاتا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے دل کی بات ہما سے کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ مطلوب کا دوست پہلے ہی چالاک آدمی تھا، اس لیے وہ خود جان بوجھ کر اسے موقع فراہم کرنے لگا۔ ابے یار مجھے کام یاد آ گیا ہے، ایسا کر تو گھر پہ بیٹھ، اور ملازمہ تو گھر میں موجود ہے، تجھے جو کچھ منگانا اس سے منگا لیو، تو بیٹھ، میں ابھی آیا، کیا سمجھا؟
जल्दी आ जा। हाँ हाँ तू बेफिक्र रह यार। बिलाल चला गया तो मतलूब काफी देर तक किसी सोच में डूबा रहा। फिर उसने हिम्मत करके हुमा को आवाज दे दी। अरे भाई हुमा, हे हुमा, हुमा। क्या बात है साहब जी? तुम्हें लस्सी बनाना आती है? जी साहब जी। तो मेरे लिए लस्सी बना। जी ठीक है। और हाँ सुन, हाँ ये ले। नहीं साहब जी नहीं, मैं पैसे नहीं लेती। अरे रख ले, खुशी से दे रहा हूँ मैं। हाँ, और जा लस्सी लिया बना के। मुलाजिमा ने खामोशी से पैसे रख लिए। क्या याद करेगी तू भी? जब वो वापस लस्सी लेकर आई तो मतलूब की हिम्मत बढ़ गई। एक बात बता, जी। नाम क्या है तेरा? हुमा। हुमा। अच्छा, ये बता, जी। तू शादी करेगी मुझसे? मुझे नहीं पता। मुलाजिमा झेप कर चली गई और अब मतलूब ने फैसला कर लिया कि वो अपने दोस्त को बीच में डालेगा। एक दिन मतलूब ने अपने दिल की बात दोस्त से कही तो उसने फौरन उसकी शादी हुमा से कराने की हामी भर ली और फिर शादी के नाम पर मतलूब से पैसे बटोरने लगा। मतलूब बिलाल के कहने पर दिल खोल कर अपना पैसा लौटा रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका दोस्त 18 साल हुमा से उसकी शादी करवा देगा। बिलाल ने कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया था कि अब हुमा भी बड़े मियाँ से झूठ मूठ का प्यार जताने लगी थी। हर अदा पर उसे पैसे भी मिल रहे थे। एक दिन जब बिलाल घर से बाहर था, हुमा और मतलूब घर में अकेले थे। हुमा मतलूब के लिए चाय लेकर आई तो चुप चुप थी। मतलूब ने अपनी नौखेज महबूबा को देखा तो परेशान हो गया और फिर मोहब्बत से उसका हाथ थाम कर हमदर्दी जताने लगा। जिसके बाद हुमा ने मतलूब के कान में एक ऐसी सरगोशी की कि एक लम्हे के लिए मतलूब चकरा कर रह गया। हुमा ने मतलूब को जब ये बताया कि वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है तो उसके पैरों से जमीन निकल गई और उसका सर चकरा कर रह गया। हुमा की बात सुनकर पहले तो 78 साला मतलूब को यकीन ही नहीं आया और फिर मुबैना तौर पर मतलूब ने हुमा को खामोश रहने की धमकी दे डाली, जिस पर मुबैना तौर पर हुमा हत्थे से उखड़ गई। मतलूब को एहसास हुआ जैसे हुमा उससे मजीद रकम ऐंठने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रही थी। मतलूब ने फैसला किया कि वो उसके झूठ के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएगा, मगर हुमा मतलूब से ज्यादा चालाक निकली। इससे पहले कि मतलूब थाने में पहुंचकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाता, हुमा ने थाने में मतलूब के खिलाफ दरखास्त दे दी। इस वाक़े के एक दिन बाद मतलूब शदीद परेशानी के आलम में घर में बेचैनी से टहल रहा था कि इस दौरान थानेदार का फोन आ गया। मतलूब ने फोन उठाया तो उसे थाने तलब किया गया था। मतलूब फोन रखने के बाद एक लम्हे के लिए चकरा कर रह गया और फिर वो अपने कुछ दोस्तों से मशवरे के लिए उनके पास पहुंच गया। मतलूब का दावा था कि वो हुमा से मोहब्बत करता है, वो उसे हर हाल में कबूल है। अपने दावे को सच साबित करने के लिए उसके जहन में एक अनोखी तरकीब आई। वो दोस्तों के साथ घर वापस आया। उसने अपनी शादी का कुल्हा एक पुराने संदूक से निकाला और उसे सर पर सजा लिया। दूल्हा बनने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ इस तरह थाने रवाना हुआ जैसे वाकई वो अपनी दुल्हन लेने जा रहा हो। ये हैं वो मनाजिर। थोड़ी ही देर में पुलिस ने चंद अफराद पर मुश्तमिल बरातियों का कुछ इस तरह इस्तकबाल किया कि बरातियों को खाए पिए बगैर ही वापस जाना पड़ा। पुलिस ने दूल्हा मियां का कुल्हा सर से उतारा और उन्हें मुल्जिम बना दिया। मतलूब खामोशी से ये सब कुछ देखता रहा और फिर वो घड़ी भी आ गई जब हवालात का ताला खोलकर दूल्हा मियां को थाने के हुजले उरूसी में दाखिल होने का हुक्म दिया गया। ये है वो मनाजिर। शब्बीर ने जब मतलूब से हकीकत दरियाफ्त की तो उसने बताया कि वो हुमा से मोहब्बत करता है और शादी के लिए तैयार है। कुड़ी की शादी कराने
ते इतने पैसे दे 2.5 लाख रुपये एक बारी लेने, लाख रुपये एक बारी लेने, एक कल्टस लेने 4 लाख रुपये एक बारी लेने, 8-10 लाख रुपये एक सिलाई लेके गायब हो गए। भैया मैं उस दिन शादी करना चाहना, मैं उस दिन प्यार हो गया, मैं उस दिन शादी करना चाहना। उधर उसी दिन शब्बीर ने हुमा को भी देखा, जो अपनी एक दोस्त के साथ थाने में मौजूद थी। हुमा तो कम बोल रही थी, लेकिन उसकी सहेली इस तरह बोल रही थी जैसे ये सब कुछ उसके साथ हुआ हो। ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। और ये है 18 साला हुमा, जिसका दावा था कि वो 78 साला मतलूब के बच्चे की मां बनने वाली थी। ये मुझे अपने घर लेके चला जाता था अपनी बहन के घर, वहाँ मेरे साथ काम काज के लिए वहाँ मेरे साथ जाते करता था, मेरे पास गन पॉइंट रख के। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। मैंने इनको शादी के सिलसिले में 12 लाख रुपया मकान बेच के दिया, एक गाड़ी भी दिया। अब वो शादी से इनकारी की वजह से मेरे खिलाफ इन्होंने ज़नाकारी की दरख्वास्त दे दी है। तो उस सिलसिले हम तहकीकात कर रहे हैं, दोनों फरीकान की बातें सुनेंगे, जो मेरिट पे फैसला होगा वो इंशाल्लाह कानून के मुताबिक करेंगे। पुलिस ने मतलूब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। शब्बीर को हैरत है कि मतलूब हुमा से शादी के लिए रजामंद था, तो हुमा ने ये मुबैना ड्रामा क्यों रचाया। शब्बीर का कहना है कि ये बात भी तहकीक तलब है कि क्या वाकई हुमा मतलूब के बच्चे की मां बनने वाली थी या और कोई किस्सा था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने मुजफ्फरगढ़ में एक ऐसे बच्चे को देखा है जिसका दावा था कि वो 19 बरस का था, लेकिन असल माजरा क्या था आप भी देखिए। मुजफ्फरगढ़ के प्यारे बच्चे जुनैद को जब भी देखो ऐसा लगता है जैसे ये है तो छोटा सा बच्चा, मगर शायद जल्दी में है और बड़े बड़े काम करना चाहता है। मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ, पर काम करूँगा बड़े बड़े। मैं छोटा सा एक लड़का हूँ, पर काम करूँगा बड़े बड़े। मैं छोटा सा एक लड़का हूँ। जुनैद मियाँ के मजे ही मजे हैं। अल्लाह मियाँ ने जहानत को कूट कूट कर उनके छोटे से दिमाग में भर दिया है, इसीलिए काफी सूझबूझ भी रखते हैं। मन मौजी है, कभी बॉडी बिल्डिंग का शौक हो जाता है तो घर के आंगन में बॉडी बिल्डिंग करते नजर आते हैं। मोबाइल फोन का भी शौक है और एक बड़ा सा मोबाइल अपनी जेब में उड़से रहते हैं। आवाज ऐसी नोकीली और तेज कि तीर की तरह दिल में उतर जाए। एक दिन जुनैद मियाँ की अम्मा कोई चीज तलाश कर रही थी। उन्होंने जुनैद मियाँ को फोन कर दिया, जो घर के किसी कोने में खेल कूद में मसरूफ थे। शब्बीर ने देखा कि बड़ा सा मोबाइल छोटे से हाथों के जरिए बड़े से कान में लगा रखा था और मौसूफ अम्मा को बता रहे थे कि फलां चीज कहाँ रखी थी। शब्बीर जब भी गौर से जुनैद मियाँ को देखता है तो उनके चेहरे पर बड़ों वाली संजीदगी भी तारी रहती है और उनके माथे पर किसी गहरी फिक्र की लकीर भी उभरती नजर आती है, जैसे कोई बड़ी उलझन उन्हें तंग कर रही हो। सोचते सोचते थक जाते हैं तो पहुंच जाते हैं अपनी छत पर, जहां जुनैद मियाँ के अब्बू ने उनका शौक पूरा करने के लिए बहुत से कबूतर पाले हुए हैं। कबूतरों से जुनैद मियाँ की खासी दोस्ती है, क्योंकि जुनैद मियाँ इन कबूतरों को ज्यादा देर पिंजरे में बंद रखने के हक में नहीं। जैसे ही जुनैद छत पर पहुंचते हैं, प्यारे प्यारे कबूतर गटर गूं करके उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर जुनैद मियाँ एक बड़ी सी चाबी से पिंजरे का दरवाजा खोलकर कबूतरों को आजाद कर देते हैं। दरवाजा खुलते ही कबूतर फड़फड़ाकर पूरी छत पर कब्जा कर लेते हैं। जुनैद मियाँ इन कबूतरों को दाना पानी देकर अपने दिल को खुश करने की कोशिश करते हैं। शब्बीर ने बहुत सोचा कि आखिर ये छोटा सा बच्चा हर वक्त किसी गहरी उलझन में क्यों नजर आता है। यही तजस्सुस शब्बीर को मुजफ्फरगढ़ ले गया, जहां जुनैद मियाँ का घर था। शब्बीर ने देखा कि जुनैद मियाँ एक मदरसे में दिल लगाकर कलाम पाक पढ़ रहे थे। फिर शब्बीर ने यह भी देखा कि जुनैद मियाँ अपने छोटे भाई के साथ गली से गुजर रहे थे। जुनैद के 4 साल छोटे भाई का कद जुनैद से बड़ा था। शब्बीर की समझ में आ गया कि शायद जुनैद मियाँ को अपना कद न बढ़ने की उलझन थी। जुनैद मियाँ बड़े मजे के बच्चे हैं। एक दिन अपनी वालिदा से जिद कर बैठे कि वो उनकी शादी कर दें।
जुनैद मियां की जानिब से शादी की फरमाइश सुनकर शब्बीर को मीर तकी मीर का वो मिसरा याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा था, इतने से कद पे तुम भी कयामत शरीर हो। शब्बीर को मालूम हुआ कि जुनैद मियां की जानिब से शादी की फरमाइश पर उनकी वालिदा ने उन्हें समझाया था कि शनाख्ती कार्ड के बगैर उनकी शादी नहीं हो सकती और शनाख्ती कार्ड के लिए कम से कम इंसान का 18 बरस का होना जरूरी है। ये इत्तला मिलते ही उन्होंने अपनी माँ को बावर कराया कि वो 18 के नहीं बल्कि 19 बरस के हैं। जुनैद मियां के इस दावे के बाद तो शब्बीर भी एक बार हिल कर रह गया। शब्बीर ने जुनैद मियां का गौर से जायजा लिया तो वो कहीं से भी 19 बरस के नजर नहीं आए। शब्बीर ने जब जुनैद मियां से अजराहे मजाक पूछा कि मियां बड़े बनने की इतनी जल्दी क्या है और आप 19 बरस के कहीं से नहीं लगते, तो जुनैद मियां संजीदा हो गए और कहने लगे कि जनाब मैं 19 साल ही का हूँ। 19 साल में मैंने 7 जमातें पढ़ी। पहले हम कराची रहते थे, वहाँ मैं पढ़ता नहीं था। इधर आके मैंने शुरू की है पढ़ाई। इधर आके 7 साल हुए, 7 साल में 7 जमातें पढ़ी हैं। कुरान मजीद भी पढ़ने जाता हूँ। यहाँ हमारे नज़दीक मदरसा जामा शरफिया। मैं नमाज हनफी मेरी खत्म होने वाली है, हिफ्ज़ करना चाहता हूँ। जुनैद मियां का दावा था कि वो 19 बरस के हैं और नाजरा वालों के पास चक्कर लगा लगा कर उनकी जूतियां घिस चुकी हैं, लेकिन नाजरा वाले जुनैद मियां के दावे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वाकई जुनैद मियां ठीक कह रहे थे, क्योंकि एक दिन शब्बीर ने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि जुनैद मियां अपने वालिद के साथ नादरा के बाहर एक लंबी लाइन में लगे हुए थे। शब्बीर जुनैद मियां को गौर से देखता रहा। उनके चेहरे पर वही परेशानी और गुस्से के आसार थे। फिर शब्बीर ने देखा कि वो थोड़ी देर में नादरा के दफ्तर से लौट आए, यानी नादरा वालों ने उन्हें 19 बरस का तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। फिर क्या था, शब्बीर ने जैसे ही उनसे उदासी का सबब पूछा तो गोया उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया और उन्होंने नादरा वालों को बगैर कॉमा फुल स्टॉप के खरी खरी सुनाना शुरू कर दी। मैंने शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहता हूँ। शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए नादरा के दफ्तर में जाता हूँ। वो चक्कर पे चक्कर दे देते हैं। कभी कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, कभी कहते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लाओ, कभी कहते हैं कुछ लाओ, कभी कहते हैं कुछ लाओ, कभी कहते हैं डॉक्टर डेंटल सर्जन की रिपोर्ट लाओ। जलील करगा मुझे। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने जलील कर गए। नवाज शरीफ से मेरी अपील है कि जल्द से जल्द शनाख्ती कार्ड बनवाए जाए। जुनैद मियां ने अपने दावे की सच्चाई साबित करने के लिए शब्बीर को तमाम दस्तावेज दिखाई तो शब्बीर को यकीन हो गया कि जुनैद मियां 19 बरस ही के थे। अलबत्ता अल्लाह मियां ने न सिर्फ उनका कद बढ़ने से रोक रखा था, बल्कि चेहरे मोहरे से भी उन्हें 7-8 बरस की उम्र से ज्यादा का रूप नहीं दिया था। शब्बीर को जुनैद मियां की मुश्किलात का अंदाजा हुआ तो शब्बीर ने मुजफ्फरगढ़ में एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर आमिर शेख से जुनैद मियां की मदद की दरखास्त की और आमिर शेख ने फौरन नादरा वालों से राबिता किया। ये है वो मनाज़िर, आप भी देखिए। मुजफ्फरगढ़ में एक 19 साल नौजवान है जिसकी जो है एज 19 साल है। उसका बर्थ सर्टिफिकेट उसके पास मौजूद है। 32 इंच इसका कद है। डेंटल सर्जन की इसके पास रिपोर्ट मौजूद है। डिसेबल सर्टिफिकेट इसके पास मौजूद है और दीगर जो यानी कि क्वाइस लिखे हैं वो नादरा का जो बर्थ सर्टिफिकेट है इसके पास वो भी मौजूद है। लेकिन इसको जो है शनाख्ती कार्ड जो है वो जारी नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से इसने उम्रे पर और हज पर जाना है कि उसके लिए जो है इसको रुकावट इसके मसले में आ रही है। तो इस सिलसिले में हमने इनका जी ID कार्ड नहीं दिया। पाकिस्तानी शहरियत से महरूम 19 साल जुनैद का कद सिर्फ 32 इंच है और बस यही जुनैद मियां के रास्ते की रुकावट है। जुनैद मियां दिन रात अपनी बात साबित करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और नादरा वाले कोई न कोई एतराज लगाकर उन्हें टरखाते रहते हैं। जुनैद मियां दिल ही दिल में कुड़ते रहते हैं और कहते हैं कि छोटा सा बच्चा जानकर हमसे मत टकराना रे। छोटा बच्चा जान के ना कोई हक दिखाना रे। कल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे।
शब्बीर ने जुनैद के शनाख्ती कार्ड के मामले में अरबाब इख्तियार से अपील की है कि बराए मेहरबानी जुनैद मियाँ को मजीद तंग न किया जाए। अगर जुनैद मियाँ का कद छोटा रह गया तो उसमें जुनैद का क्या कसूर है? 32 इंच के 19 साल मोहम्मद जुनैद का ये कहना है हुकूमत पाकिस्तान इसे फौरी तौर पर कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करे ताकि इसे भी पाकिस्तानी होने का हक हासिल हो। प्रोग्राम शबीर तो देखेगा के लिए अमित शेख, एक्सप्रेस न्यूज, मुजफ्फरगढ़। कुछ दिनों पहले शब्बीर से किसी ने पूछा कि क्या इस मुल्क में गरीब और बेहैसियत लोगों को इंसाफ मिलना मुमकिन है? शब्बीर इस सवाल के जवाब में खामोश हो गया। उसने साहिल से नजरें चुरा ली क्योंकि कुछ दिनों पहले शब्बीर को इस सवाल का ऐसा जवाब मिला था कि उसके होश उड़ गए। गुजरावाला में कुछ दिनों पहले एक ऐसा ही वाकया पेश आया था जिसमें इंसाफ से मुताल्लिक इस सवाल का जवाब था। आप भी देखिए। नदीम की माँ पर गशी के दौरे पड़े हुए थे। उसे खाने का होश था न पीने का। बस एक ही इल्तिजा, एक ही फरियाद थी उसके लबों पर, कोई मेरा बेटा ला दे, मुझे मेरा बेटा चाहिए। नदीम की 14 साला बेटी दादी को रोते फरियाद करते देखती तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते। फिर वो अपनी दादी से लिपटकर रोने लगती। ईद करीब आ रही थी और नदीम की बीवी बच्चे नदीम की वापसी से तकरीबन मायूस हो चुके थे। घर में कोहराम मचा हुआ था। खाना रखे रखे ठंडा हो जाता, लेकिन नदीम की बूढ़ी माँ, बीवी और उसके मासूम बच्चे खाने को हाथ तक नहीं लगाते। नदीम की बीवी मुसलसल मुसल्ला बिछाए बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू छलकते रहते और वो कई कई घंटों तक तस्बीह हाथ में लिए अपने शौहर की वापसी के लिए दुआएं करती थी। फिरोजवाला के इलाके रशीद कॉलोनी के रिहायशी नदीम नौकरी की तलाश में अपने घर वालों से लीबिया का कहकर निकला था, लेकिन मंजिल मकसूद पर पहुंचने से पहले ही मुबैना तौर पर तावान के लिए अगवा कर लिया गया। नदीम के जाने के चौथे दिन जब अचानक गैर मुल्की नंबर से कॉल आई तो नदीम की बेटी ने फोन उठा लिया। हेलो। अरे मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा बाबा। बाबा, आप कहाँ हैं? आप लीबिया क्यों नहीं पहुँचे? बाबा, ईद भी आ रही है। नदीम की बेटी बाप की आवाज सुनकर एक ही सांस में बोलती चली गई। अरे बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी अम्मी को बुलाओ। जी बाबा। अम्मी, अम्मी बाबा। नदीम की बीवी खुद को संभाले हुए तेजी से फोन की तरफ लपक रही थी कि मेज के कोने से उसका पांव टकरा गया। वो शदीद तकलीफ के आलम में गिरती पड़ती जब फोन के करीब पहुंची। हेलो, हेलो नदीम। फोन लेते ही जैसे उसने हेलो कहा, एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गई और आंखों में हैरानी लिए अपनी बेटी को सवालिया नजरों से देखने लगी। फोन के दूसरी तरफ उसके शौहर की आवाज नहीं थी। कान खोलकर खामोशी से सुनो, तुम्हारा शौहर सूडान में है और अगर तुम चाहती हो कि वो लीबिया खैरियत से पहुंच जाए तो एक दिन के अंदर 5 लाख का इंतजाम करो, समझी? नदीम की बीवी के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। बेटी ने अपनी मां को गिरने से बचाया। नदीम की बीवी हालत देखकर उसकी सास भी उसके करीब आ गई। क्या हुआ? बताओ ना, क्या हुआ? सबकी निगाहों में सवालात थे कि आखिर हुआ क्या। कुछ देर बाद नदीम की बीवी ने बमुश्किल अपने हवास ठिकाने किए। उन्होंने नदीम को अगवा कर लिया और वो कह रहे हैं अगर हमने 5 लाख रुपए नहीं दिए तो वो नदीम को जान से मार डालेंगे। हम कहाँ से लाएंगे 5 लाख रुपए अम्मा? या मेरे खुदाइयों में किस आजमाइश में डाल दिया? पापा को किसी ने अगवा कर लिया। 5 लाख हम कहाँ से लाएंगे इतनी बड़ी रकम अम्मा? नदीम इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह के हत्थे चढ़कर सूडान पहुंच गया था। ये गिरोह मंडियाला तीगा में ज्यादा सरगर्म था और उसके एजेंट मुल्क से बाहर मौजूद थे। स्मगलरों का ये गिरोह लीबिया जाने वाले ख्वाहिशमंदों से ठीक ठाक रकम वसूल करके उन्हें सूडान पहुंचाता था और फिर उनके एजेंट्स मुबैना तौर पर सूडान पहुंचने वालों को अगवा करके उनके घर वालों से तावान का मुतालबा करते थे। नदीम और उसका दोस्त भी सूडान पहुंचे।
हाँ बोल, क्या हुआ रकम का? मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा के लिए कुछ रहम करें। तो इसका मतलब है तुझे अपने भाई की कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो। मुसल्ला शख्स ने फोन बंद कर दिया और शाहिद हलो हलो करने के बाद सर पकड़कर बैठ गया। इसी दौरान नदीम की बीवी कमरे में आई तो अपने देवर को परेशान रोककर उसका सांस रुक गया। शाहिद, क्या हुआ? किसका फोन था? कि तेरे भाई का फोन था? वो ठीक तो है ना? भाभी आप फिक्र मत करें, मेरी बात हो गई उन लोगों से, कुछ दिन की मोहलत मांग ली मैंने। या अल्लाह खैर, अल्लाह पाक अपना रहम करना। किस आजमाइश में पड़ गए हैं हम, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, इस वाकये के बाद शाहिद ने मुबैना गिरोह के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, लेकिन पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। फिर कुछ दिनों के बाद नदीम के साथ जाने वाले उसके एक दोस्त ने लीबिया से नदीम की बीवी को फोन किया। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो भाभी, मैं नदीम का दोस्त बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या नदीम लीबिया पहुंच गए? भाभी प्लीज बहुत हौसले से सुनिएगा। क्या हुआ है, बताएं ना प्लीज। भाभी उन्होंने सूडान में ही नदीम को रकम ना मिलने पर कत्ल कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नदीम की बीवी ये हौलनाक खबर सुनते ही दौड़ती हुई अपनी सास के पास पहुंची और जाकर उससे लिपट गई। उन्होंने नदीम को कत्ल कर दिया। मेरे बच्चे तुम्हारा अब्बू चला गया, नहीं रह सकते उनके बगैर। नदीम को इंसानी स्मगलरों के एजेंटों ने तावान की रकम ना मिलने पर कत्ल कर दिया था, जबकि उसके दोस्त से तावान की रकम वसूल करके उसे लीबिया पहुंचा दिया था। दयारे गैर में बेटे के कत्ल की खबर सुनकर नदीम की मां अपना रहा सहा होशो हवास भी खो बैठी और उस पर गशी के दौरे पड़ने लगे। नदीम की बीवी, उसके मासूम बच्चे गुमसुम थे। ये सब कुछ एक भयानक हकीकत थी। शब्बीर ने इस अंदोहनाक वाक़े के बाद नदीम के घर वालों की हालत देखी तो वो लरस कर रह गया। मकतूल की बेटी अपने बाप को याद करके ज़ारो कतार रोए जा रही थी। मेरे पापा को उन्होंने फ्रॉड किया है, यहाँ से उन्होंने पैसे मांगे 5.5 लाख रुपया उन्होंने दिए हैं। तो बाद में उन्होंने ना वहाँ सूडान कह रहे थे हमने लेके जाना है, तो वो ले गए। तो आगे जाके कहते हैं कि मेरे बाबा है ना जो, तो उन्होंने हम बेहोश थे, वो हम पर पानी डालते रहे। तो बाद में कहते हैं उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, तो फिर कभी कहते हैं शुगर हुआ है। तो ऐसे झूठ बोल रहे हैं, कभी उन्हें कोई ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए हम नहीं मान रहे। तो अब मुझे खुद लग रहा है कि मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ। तो हर ईद पे मेरे पापा आया करते थे, तो आप हम इंतजार करते रहे, नहीं आए। मकतूल की मां के होठों पर सिर्फ एक ही सवाल था कि उसका बेटा कब आएगा। वो जिंदा सी, उन्हों किते सुट गए ने, आप नठ गए ने। जालम जालम मेरे पुत्र नु मार के सुट गया। जालम मेरे पुत्र नु मार के सुट गया। मैं रोवाना दे की करा, मैंने सा किसे घर आके तली कर दी, मैं थोड़ा ही खा ली थी। मेरा बच्चा आया वे, मेरा आज पालक आया वे, मेरा आज पालक आया, मेरे सुकून लोकी लगा, मेरे जौन लोकी लगा। नदीम की बीवी मुसलसल खामोश थी और जब शब्बीर ने उससे हमदर्दी का इजहार किया तो उसके जब्त का बंधन टूट गया। आज वज़ीर आज़म से अपील करना चाहते हैं, हमारे ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਕੋਈ ਸਾਡੀ अपील ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ नहीं चाहिए। इस संदोहनाक वाक़े के बाद नदीम का कज़न इंसानी स्मगलरों की गिरफ्तारी के लिए थाने के चक्कर काटता रहा,
लेकिन पुलिस मुलजिमों को गिरफ्तार न कर सकी। कामोगी वाला लड़का जो दफना के आया उससे रब्ता किया, उसने कहा मैं वैसे ही उसको कपड़े समेत ही जनाजा कोई नहीं पड़ा, वैसे ही दब के आ गए। दाऊद ने बोला कि वो मानत करके दफना गए हैं। अभी हमारे तो कोई समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ है, क्या हुआ है। हमारी तो वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि खुदा के लिए हमारी मदद करे। हमारे भाई को इतने देर हो गई, रो के पागल हो गए। ना एफआईआर ने भी चाहते हैं, एफआईआर ने भी हमारी बात नहीं सुनते हैं। वो बोलते हैं ये बॉडी का हमारा कोई लिंक नहीं है, हम पर्चे को क्या करें। पर्चा लेके कभी अदालत में जाते हैं, वो बुरी जमानतें करा लेते हैं। कभी वो बोलता है ये रियाज जो एजेंट है ये इसको हम नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। फिर कभी बोल देंगे ठीक है हम इसको पकड़ लेंगे, आप पकड़ाओ का। मैं 2 दफ़ा रेड करवाने गया हूँ तो उधर भी एफआईआर कोई आदमी नहीं आया। शब्बीर को हैरत है कि मकतूल के लवाहिकीन की निशानदही करने के बावजूद इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह के अरकान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह के अरकान अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके, जबकि मकतूल के लवाहिकीन ने इस गिरोह के अरकान के नाम पते तक बता दिए हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।